विश्व अंगदान दिवस मौके CGC लांडरा ਵੱਲੋਂ अंगदान प्रति ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਾਂਸ਼ ਲਾਈਫ ਬਿਯੋਂਡ ਲਾਈਫ ਨਾਮਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ CGC ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। CGC ਲਾਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਦਾਨ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਈਏ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਲੀਵਰ ਕਿਡਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਡੋਨਰ ਕੋਈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੀਵਰ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮਾਈ ਲੀਵਰ, ਸਿਸਟਰ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮਾਈ ਹਰ ਕਿਡਨੀ। ਪਰ ਦੈਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਇਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਆ, ਬਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਨਾਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟ ਪੀਪਲ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ। ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਮੈਮ ਹੈ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਨੀ ਸਰ ਨੇ ਔਰ 8 ਡਾਕਟਰਸ ਫਰੋਮ ਵੇਰੀਅਸ ਹਸਪੀਟਲਸ around the city, they have agreed to talk about it because ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ daily basis ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So I have today Dr. Jitendra, he's from PGI and he's an eye specialist. Then we have some donors and recipients here. ਸਾਡੇ alumni ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਸ਼। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਮੋਟੋ ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ PGI ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਜੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ। 3 ਜੂਨ ਇਸੇ 2026 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ 2010 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਪ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। To talk about it. Yes. So नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आई डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम का एक हिस्सा बन पाया हूँ। बेसिकली इट्स अबाउट ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, बट सिंस आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई सर्जन, तो मैं आँखों के डोनेशन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जब हम जीवित रहते हैं, आई डोनेशन हमें उस टाइम प्लेज करनी होती है। लाइक वी हैव टू गिव ए प्लेज दैट आई आफ्टर रिटर्न फ्रॉम टू द एनी ऑफ द आई बैंक, whether it is PGI or some other hospital. So and you have to declare your wish to your parents or your nearby, so that उन लोगों को पता रहे कि हमारे इस व्यक्ति की एक विश थी कि इसको डोनेट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। दूसरा ये है कि जब हमने एक प्लेज कर दी है और उसके बाद हमारे अगर रिलेटिव्स भी एग्री करते हैं तो ही तभी आई डोनेशन हो पाता है। अगर वो डिसएग्री कर जाते तो आई डोनेशन नहीं होगा, राइट। सो वो हमारे साथ सेम वाइब में होने चाहिए। फिर उनको जल्दी से जल्दी कॉल करनी होती है नियर बाई आई बैंक को, सो दैट कि वहाँ की आई डोनेशन टीम जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँच के विद इन 6 आवर्स, जो गोल्डन टाइम विंडो है, उसमें आके आई डोनेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें। तो इससे फिर क्या है कि अगर हमारी आई की क्वालिटी अच्छी है, जो डोनेट हुई है वो एक निश्चित टाइम पीरियड में पहुँच गई है, और हम उसको फिर किसी पेशेंट को लगा के उसको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और हमें पता ही है एक पेशेंट की लाइफ में आइज का क्या इम्पोर्टेंस है। without the eyesight, nobody can enjoy the life, nobody can perform their duties of any kind, right? So I think नेत्रदान एक महादान है, और एज अदर ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट है, नेत्र भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे लगता है कि सबको यंग एज में ही अपनी प्लेस तो कर देनी चाहिए। लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट ईयर्स, आई वाज डूइंग माय MBBS, एट दैट टाइम ओनली आई गिवन प्लेस। 2005 में मैंने अपना प्लेस कर दिया था, और अभी तो उसके बाद ही मैं चलो उस आई स्पेशलिटी में अभी आ गया हूँ, तो मुझे और मौका मिल रहा है इस बारे में काम करने का। सो हमारी आई डोनेशन अवेयरनेस फोर्टनाइट भी है 25 सितंबर से 8 अगस्त के बीच में। लाइक 2 वीक्स होते हैं, लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इसमें हम और भी ज़्यादा आई डोनेशन अवेयरनेस के बारे में वी विल परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द PGI, आउटसाइड PGI, अराउंड द चंडीगढ़, अराउंड द ट्राई सिटी, in collaboration with the Lions Bank. We will be doing a lot of activities. So if any one of you require our help in creating more awareness regarding eye donation, we will be happy to participate. Thank you. Jai Hind. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ CGC ਲਾਂਡਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ PGI ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਭੁੱਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੋਨੇਟ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ 2026 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ PGI 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ PGI 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ACS ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ PGI 'ਚ ਹੁਣੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ PGI ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਰਗਨ ਬਾਅਦ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜੂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 20 ਬੋਡੀਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਗਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 10% ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨਰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਚ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਐਜੂਕੇਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਗਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਮੈਡਮ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਲੱਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਲੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਡੋਨੇਟ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਦੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਆਓ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। मेरा नाम डॉक्टर अमित शर्मा है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। आज इस मौके पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जीवांश के थ्रू हम लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन है या अंग दान है, इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैले। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को ये संदेश देना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। जब जानकारी नहीं होती तो कोई एक्शन नहीं ले पाते, और इसके थ्रू हम लोगों में ये जानकारी ही फैलाना चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जिसको लिए हमें खुद आगे आना चाहिए। हमें मुझे अगर पता है तो मुझे मेरे साथ में जो मित्र हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको इस बारे में जागरूक करना चाहिए। अगर मैं ये सोचूं कि मैं आज 20 लोगों को कुछ बता दूंगा और वो आगे अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं, उनका भी आगे कर्तव्य बनता है कि आगे से आगे लोगों को इस बारे में बताएं, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताएं। हमारे देश में अगर हम बात करें तो हर साल तकरीबन 2.5 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तकरीबन 80,000 लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, इतने ही लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है।
और अगर हम पूरे साल में बात करें तो शायद 20,000 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर साल एक अकेले किडनी के पेशेंट ही 2,30,000 ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो 5 साल में ये आंकड़ा कहाँ पहुँच जाएगा। अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ और इंडिया में, सो इंडिया में ज़्यादातर जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो लिविंग ट्रांसप्लांट होते हैं कि परिवार के कोई मेंबर्स किडनी दे रहे हैं या लिवर का दान कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बात करें तो 90% केसेस में ऑर्गन डोनेशन होती है डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी कि वो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनके अंग जो हैं उनका ट्रांसप्लांट होता है। और हमारे समाज में भी इसी बात की जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि डेथ के बाद जो ऑर्गन हमारे किसी काम के नहीं हैं वो किसी और के काम आ सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को कोई नया जीवन दे सकते हैं। इसमें भी समाज में कई तरह की और सोच होती है, वो होती है जिसको लेकर के जो हम बात करते हैं डेथ के बाद हम कैसे ऑर्गन को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ट्रांसप्लांट हो सकता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है डेथ के बाद वो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है डोनेशन आफ्टर नेचुरल डेथ, जब किसी की डेथ नेचुरल वे में हो जाए, घर में डेथ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ ही अंग ले सकते हैं, जैसे आँखें डेथ होने के कुछ घंटों के भीतर, या फिर शरीर के कुछ अन्य पार्ट जैसे स्किन का बोन हो गई, हड्डियां हो गई, या फिर ईयर बोन, कई लोगों को जो सुनाई नहीं देता है तो ईयर बोन्स उनका ट्रांसप्लांट करके सुनना किया जा सकता है, मिडल ईयर बोन जिसको कहते हैं। तो नेचुरल डेथ के बाद केवल यही कुछ अंग हैं जो लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो होता है ब्रेन डेथ का, डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनकी किसी वजह से ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो जाए जो रिवर्स नहीं हो सकती। सो ऐसी स्थिति तब आती है जब कई बार आप देखते भी होंगे आसपास में परिवार में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बहुत हो गया जिसके कारण ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा डेड हो गया, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई, या ब्रेन में कोई ट्यूमर हुआ जिसकी वजह से जो है ब्रेन में काफ़ी प्रेशर बन गया और उसमें ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो गया। ये वो, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ब्रेन ट्रॉमा हुआ और वो ठीक नहीं हो सकता। ये वो स्थिति आती है जिसमें पूरा शरीर ठीक है लेकिन ब्रेन नहीं है, और ब्रेन हमारे शरीर को चलाता है। तो ब्रेन डेथ इफेक्टिवली डेथ है। ये हमारे समाज में ये कॉन्सेप्ट नहीं आ पाता। लोगों को कई बार लगता है देखिए दिल तो धड़क रहा है, हम ऐसा कैसा मान लें कि ये व्यक्ति नहीं है। और ऐसी स्थिति में कई बार पेशेंट्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखे रखते हैं कि डॉक्टर साहब आप इन्हें वेंटिलेटर पर रखिए, क्या पता ये कुछ दिनों में उठ जाए, कुछ हो जाए। जबकि हम कई बार उन्हें समझाते हैं कि ये वो स्थिति आ गई है जो परमानेंट डैमेज हो चुका है। ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट को आगे बढ़ा के कोई लाभ नहीं होने वाला, और हमें सोचना चाहिए कि क्या हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं इस स्थिति में। सो ये तभी होगा जब हमारे समाज में ये क्लैरिटी आए कि दिल धड़क रहा है लेकिन ब्रेन में परमानेंट डैमेज है, तो वो भी जो है डेथ है जिसको हम ब्रेन डेथ कहते हैं। पहली ये जब जागरूकता आएगी, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जब ब्रेन डेथ हो गई तो हम कैसे समाज के दूसरे वर्ग की हेल्प कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब ब्रेन डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट द्वारा कुछ नियम है उनके अकॉर्डिंगली फॉलो करके एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है, एक एग्जामिनेशन कमेटी होती है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स होते हैं। वो हॉस्पिटल्स में आके ऐसे पेशेंट्स को निरीक्षण करते हैं और 2 बार एटलीस्ट 6 घंटे के गैप पे 2 बार निरीक्षण करके अगर उन्हें ये विश्वास होता है, टेस्टिंग में ये पाया जाता है कि ब्रेन में परमानेंट डैमेज हो चुका है, उसके बाद ही वो उसको सर्टिफाई करते हैं कि आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ब्रेन डेथ ये डिक्लेयर हो गई। ऐसी स्थिति में जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों में ये जागरूकता आनी चाहिए कि ऐसे स्थिति में ऑर्गन डोनेट करके किसी और को, जिसमें लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स यानी कि फेफड़े, इंटेस्टाइन, ये इतने सारे ऑर्गन हैं, एक व्यक्ति द्वारा 83 लोगों को एक नया जीवन मिल सकता है। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोई जाने वाला व्यक्ति अगर है तो उसको अगर सच्ची श्रद्धांजलि हो तो वो यही हो सकती है कि उसके द्वारा इतने सारे लोगों को एक नया जीवन मिले। सो मेरी सबसे यही अपील है कि इस मामले में अंगदान के बारे में जाने, हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। कोई भी अंगदान अगर या ऑर्गन डोनेशन करेंगे तो आप लिस्ट आ जाती हैं कि वेबसाइट्स हमेशा जो आपका ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो हम कहते हैं नॉटो वेबसाइट, नेशनल ऑर्गन टिश्यू
एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी जो कि हेल्प कर सकती है। धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार रतन चंडीगढ़ प्रशासन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਫਿਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਟਕਦੀ ਸੀ। ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੇਲੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਵਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅੰਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 2019 'ਚ 14 ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ USA। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ CGC ਲਾਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਦਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਲੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਜ਼ਰੇਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੰਗਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 40 50 ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਡੋਨਰ ਨੇ ਯੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਹੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। 5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। 15-16 ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਅੰਗਦਾਨ ਕਰੋ। ਅੰਗਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਅੰਗਦਾਨ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मेरा नाम रूपा अरोड़ा है। मैं एक लिविंग लीवर डोनर हाँ। मैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल 37B ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ CGC ਲਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਾਂਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। सन 2011 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦਾ 65% ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਬ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਅੰਗਦਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਅੰਗਦਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਅੰਗਦਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ क्या होना है। किसी ने कहा भी है कि चिता में जाएगी तो राख बन जाएगी, मिट्टी में जाएगी तो खाक बन जाएगी। किसी को करके तो देखो अंगों का दान, किसी की ज़िंदगी और किसी का परिवार खुशहाल बन जाएगा। तो जो अंगदान की इम्पोर्टेंस है वो उसका महत्व है, उसकी अवेयरनेस आज यूथ को देने की ज़रूरत है ताकि वो इस मैसेज को अपने परिवार तक, घर तक पहुँचाएँ। क्योंकि मैंने भी खुद नोटो के ऑफिस में जाके ऑर्गन डोनेशन के बाद अपने ऑर्गन्स प्लेज किए थे कि मैं इतना मतलब कन्विंस हो गई थी ऑर्गन डोनेशन की वैल्यू से कि ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। कितने हज़ारों लाखों लोग जो हॉस्पिटल में वेट करते हैं कि उनको कोई अंग मिले, कोई आगे आएगा तभी तो उनको मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा? हमें लोगों को बहुत से यत्न करके उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को जाके ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के बारे में बताने की ज़रूरत है। PGI की तरफ से भी जो अभी डॉक्टर साहब बता के गए हैं, हर साल जो 15 दिन का वो ऑर्गन आई डोनेशन अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, तो वो स्कूल्स में भी बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं। चाहे वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन के थ्रू है या ड्राइंग कंपटीशन के थ्रू है, अंगदान का महत्व बताया जाता है। बहुत सारे लोग ऑर्गन प्लेज तो कर देते हैं बट वो अपने घर में जाके इस बात को बताते नहीं हैं, और जबकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपने अपने ऑर्गन डोनेशन की प्लेजिंग की है तो उसके बारे में अपने परिवार को, अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ, ताकि अगर कभी बाय चांस ऐसी बात हो जाती है तो आपके परिवार को आपकी इच्छा पता हो, ताकि वो आपके अंग डोनेट करके किसी की लाइफ को बचा सकें। क्योंकि एक अंगदानी है जो 8 लोगों की जान बचा सकता है और 75 लोगों की जो है लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है थ्रू और स्किन और टिश्यू डोनेशन। तो आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी। एक बार मेरा आर्टिकल भी लगा था ट्रिब्यून में और अजीत में कि कौन सा मौत भी जगा सकती है बुझदे हुए चिराग, कि मरण तो बाद भी बंदा जांदे जांदे लोगों की जिंदगी विच बहुत सारियां खुशहाली वाला समा जो है दान करके जा सकता है। तो मेरा भी सब नूं यही मैसेज है कि अंगदान लई अगे आओ, क्योंकि जो जीवन का उपहार है सब तो वड्डा उपहार है, इस तो वड्डी कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किडनीज दोनों दान कर सकता है। लीवर ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ हैं, मतलब लीवर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਲੋਬ।
ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਸ ਡੋਨੇਟ ਜਿੰਦੇ ਕਰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। इंटेस्टाइन जिंदे जी लिवर और किडनी डोनेट की ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਲੀਵਰ ਔਰ ਕਿਡਨੀ ਕਿਡਨੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੋ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਡਨੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 65% ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਡ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦੋ ਜਾਨ ਹੈ ਹਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲਿਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। सर वी आल्सो हैव नमस्कार सबनू, मैं डॉक्टर मुकेश चावला, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमाटोनकोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। आज मेरे को डॉक्टर बुलर से इनविटेशन आया टू बी पार्ट ऑफ दिस जीवांश कम्युनिटी जो अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू डोनेशन के लिए, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है हमारे इधर कम्युनिटी में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके डोनेट कर सकें। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो जो हमारी हेजिटेंसी है ऑर्गन डोनेशन को लेके, दिस इज़ टोटली डिफरेंट। थोड़ा सा बताऊँगा कि भाई हेमेटोलॉजी क्या होता है, क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में क्या होता है, अंदर से जो बोन मैरो होता है हमारा वही ख़राब हो जाता है या कैंसर बन जाता है या खून बनना बंद हो जाता है। तो उसमें कोई ना कोई प्राइमरी ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है जिसका फाइनल ट्रीटमेंट कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। तो बेसिकली ये एक सर्जरी नहीं है। फर्स्ट थिंग, इसमें कोई डोनेशन में सर्जरी नहीं होती है, ना कोई ऑर्गन निकलता है ना टिश्यू निकलता है। ये स्टेम सेल्स होते हैं, हमारे छोटे छोटे जो अंग होते हैं, टिश्यू सेल्स होते हैं, जो जैसे ब्लड के सेल्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो इसमें जो डोनर को होता है यूजुअली कोई सर्जरी नहीं होती है, ये एक तरह का ब्लड डोनेशन की तरह ही दिया जाता है। जैसे आप मानो जैसे हम प्लेटलेट डोनेट करते हैं या ब्लड डोनेट करते हैं, वैसे ही हमारे ब्लड में स्टेम सेल्स होते हैं जो बोन मैरो से बनते हैं। तो 90% ये ब्लड से लिए जाते हैं। तो इट इज़ लाइक जैसे प्लेटलेट डोनेशन का प्रोसीजर होता है वैसे ही स्टेम सेल डोनेशन का प्रोसीजर होता है। तो इसमें सर्जिकल नहीं होता। हार्डली 5-10% में हम बोन मैरो से करते हैं, जो एक हिप बोन से करते हैं, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो इवन देन इट इज़ वेरी सेफ, बहुत ज़्यादा सेफ है। इसमें पेशेंट का कोई अंग नहीं निकाला जाता, कोई ऑर्गन नहीं है, और जो स्टेम सेल्स निकाले जाते हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ डोनर के लिए बहुत सेफ है, कोई सर्जरी नहीं है इसमें। और जो सेल्स डोनेट किए भी जाते हैं इट इज़ लाइक अ ब्लड डोनेशन ओनली, और वो रीजनरेट हो जाते हैं। अब बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। अब जिस पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, जैसे या ब्लड कैंसर के पेशेंट, ब्लड डिसऑर्डर्स के लाइक जैसे थैलेसीमिया होता है, कोई सिकल सेल एनीमिया होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है, जिनमें खून बनना या बोन मैरो काम करना ही बंद कर देती है, या बोन मैरो में कैंसर सेल बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे लुकीमियाज होते हैं, लिम्फोमाज होते हैं, माइलोमाज होते हैं। तो इनमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो फिर वही बात, यहाँ पे ट्रांसप्लांट का वर्ड आने से ये नहीं है कि इसमें कोई सर्जरी हो रही है। जो हमने स्टेम सेल डोनर से कलेक्ट किए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन है, तो जो पेशेंट को भी जाता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तरह ही जाते हैं स्टेम सेल। भले यहाँ पे ब्लड में कैनुला के थ्रू हमारा जो ट्रांसफ्यूज़न की तरह प्रोसीजर होता है। तो अगेन पेशेंट में भी कोई सर्जरी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही सेफ़ है। तो मिथ्स हैं कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। एक तो कोई सर्जरी नहीं है, ये पेशेंट के लिए भी सेफ़ है और डोनर के लिए भी बिल्कुल सेफ़ है। दूसरा इसमें आते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितने तरह का होता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटो ट्रांसप्लांट, एक होता है एलो ट्रांसप्लांट। जो ऑटो ट्रांसप्लांट होता है वो स्टेम सेल पेशेंट के ही लिए जाते हैं, खुद के। ऑटो मीन्स खुद के। एलो होता है कि डोनर से लिए जाते हैं। तो इसमें हम कई बार पेशेंट के खुद स्टेम सेल्स लेते हैं, कई बार डोनर से भी लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमें ना मैचिंग करना पड़ता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में भी हम मैच करते हैं। तो ज़्यादातर जो डोनर होता है वो फैमिली मेम्बर होता है। फैमिली मेम्बर में भी सिबलिंग्स होता है जिसमें हम मैचिंग करते हैं। तो ज़्यादातर वो मैच्ड होता है। तो कई बार मैचिंग नहीं मिलती है, या 1-2 भाई बहन ही हैं तो मैचिंग नहीं मिलती है। उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए हैं। हमारे पास कम्युनिटी रजिस्ट्री है जिसमें सबका वो HLA का मैचिंग का रिपोर्ट होता है, ताकि हम अनरिलेटेड डोनर के साथ भी मैच करके उनको ट्रांसप्लांट कर सकें। तो जितना ज़्यादा मैच होगा उतने ज़्यादा ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स होते हैं। इसके बियॉन्ड हम कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट्स भी करते हैं जिसमें हाफ मैचिंग होती है, तो वो भी आजकल बहुत सक्सेसफुल है। तो अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये बहुत ही सेफ़ है, डोनर के लिए भी पेशेंट के लिए। इसमें हम कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं। डोनेशन इज़ लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड रिसीविंग इज़ ऑल्सो लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न।
तो आई bring awareness to all the people that they should come and become a bone marrow volunteer donor. उसमें एक सिंपल सा टेस्ट होता है HLA टाइपिंग का, जो आपको एक ब्लड टेस्ट की तरह देना होता है। वो आपका फैमिली मेम्बर के साथ मैच होता है या आपकी रजिस्ट्री में चला जाता है ताकि मैचिंग कर सकें। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू मैचिंग होता है और उसमें बिल्कुल 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन का यूजली प्रोसीजर होता है। डोनेशन की तरह जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही आपको 1.5-2 घंटा 3 घंटा लगता है एंड यू कैन डोनेट योर स्टेम सेल्स एंड गो बैक होम एंड अपना सारा रूटीन काम कर सकते हैं। पेशेंट के लिए भी सेफ़ है, सिर्फ ट्रांसफ्यूज़न है, कोई सर्जरी नहीं है। तो अब जैसे मैंने वही बताया कि हमें मैच डोनर मिलना बड़ा मुश्किल होता है रिलेटेड में, तो हमें अनरिलेटेड डोनर के लिए ये जितने डोनर्स आएंगे आगे उतनी हमारी रजिस्ट्री स्ट्रांग होएगी। कम्युनिटी से ही हमें मैच मिलेगा। अब ये तो नहीं है कि हमें बाहर के लोगों से मैच मिलेगा। तो जितने हमारे कम्युनिटी के लोग आगे आएंगे उतनी हमारी रजिस्ट्री स्ट्रांग होगी, उतना वो मैचिंग करेगा एंड उतना हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। सो आई वांट टू ब्रिंग इनटू दैट अवेयरनेस कि भाई आगे से ज़्यादा लोग आएँ, अपना डोनेशन ब्लड टेस्ट दे, डोनेट करें एंड बी अ वॉलंटियर एंड पार्ट ऑफ दिस अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू कैन आस्क क्वेश्चन। सुनने में आता है कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को डोनर्स की जरूरत होती है, डॉक्टर ही कई बार बोलने लग जाते हैं कि अगर आप किडनी देते हो, देखो जी 100% तो गारंटी नहीं है पेशेंट आपका बचेगा या नहीं। कई बार का देने के बाद भी गारंटी नहीं देते। बिल्कुल। तो उस जगह पर जो डोनर्स बड़ा मोटिवेट होकर जाता है, उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि यार डॉक्टर तो बचा ही नहीं सकता, मेरा भी पार्ट जाएगा और आगे गारंटी नहीं है। इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए उसमें काउंसलिंग बहुत और पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, इस कारण से जो भी डोनेशन है हमारी रिलेटेड डोनेशन है, फैमिली मेम्बर में ही डोनेशन होती है, बिकॉज वो ही दे पाएंगे। दूसरे को लगेगा हमेशा कि मैं दूं ना दूं। यस, सक्सेस रेट डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। वी डू अ पेशेंट सिलेक्शन। उससे पहले हमें एक पेशेंट सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो फिट है कि नहीं ट्रांसप्लांट के लिए। फिर डोनर का भी टेस्टिंग होता है कि भाई वो फिट है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि भाई हम एक ओल्ड एज डोनर को लेंगे जिनको बीमारियां हैं, क्योंकि वो पता है कि भाई कल को उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी डोनेट कर देंगे उसकी दूसरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई। सो हम बहुत सिलेक्ट करके हेल्दी डोनर्स लेते हैं और पेशेंट का भी हम पूरा सिलेक्शन करते हैं कि भाई अगर हम डोनेशन करें तो वो जो ऑर्गन है वो कुछ साल चले, ना कि इमीडिएटली फेल हो जाए। तो पेशेंट का सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दोनों तरफ हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है कि भाई आपके पेशेंट को क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए इसमें कहीं ना कहीं वो सोशल इशू आता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो हमारा लॉ है वो बोलता है कि रिलेटेड डोनर से ही करना है आपको। सर एक और सवाल लॉ से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह आप कह रहे हो कि मान लीजिए कोई डोनर डोनेट करता है कोई ऑर्गन, इसकी क्या गारंटी होती है कि जो उसने डोनेट किया है किसी ज़रूरतमंद को ही वो जाके डोनेट होगा, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी है कोई लॉ? देखो हमारा पूरा ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एक्ट है जो गवर्नमेंट का बना हुआ है, उसमें पूरे रूल्स हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए हमें सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। कमेटी बैठती है, उसमें सारी फाइल्स लगती है, डोनर की भी लगती है, पेशेंट की भी लगती है और एग्जैक्ट कि भाई इनको रिक्वायर्ड है कि नहीं है उनकी फाइल रिपोर्ट भी लगती है। मैचिंग की रिपोर्ट लगती है कि भाई हाँ ये डोनर कंपैटिबल है कि नहीं है। वो एक पूरा फाइल जाता है, वो जो हमारी कमेटी ऊपर गवर्नमेंट की कमेटी है उसके पास जाती है, वहाँ से अप्रूव्ड होता है, तभी हम ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं इन प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से हम मतलब सो दैट वी कैन प्रिवेंट ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग। कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई ब्लैक मार्केट में वो चल रहा है। तो इट इज़ लाइक वेरी लॉ के अंडर है, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज़ फ्रॉम द रिलेटेड डोनर्स ओनली। मतलब रिकॉर्ड भी आपके पास होता है, चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल, वो गवर्नमेंट के पास जाता है सारा रिकॉर्ड। और कई प्राइवेट हॉस्पिटलों ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਡਨੀ ਡੈਥ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਿਲ ਦੋਜ਼ ਲੂਪ ਹੋਲਸ। ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਯੈਸ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਡ, like it is not that common, but there are very strict laws which punishes also both sides, doctor also या कोई ऐसा दा donation भी कर रहा है, तो law is very strict। अगर मैं ट्रांसप्लांट की गल करा, yes it doesn't come under the transplant, क्योंकि आप कोई organ या tissue नहीं निकाल रहे हैं,
दैट इज़ वेरी सेफ, बट डॉक्यूमेंटेशन वाइज सारा ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ केस अगले दिन कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आए। सो इट इज़ वेरी मच डॉक्यूमेंटेड। सो एज ए ह्यूमन बॉडी से जुड़ा हुआ मैटर है, तो जैसा अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए किसी डोनर ने एक पार्ट अपना कोई डोनेट कर रहा है, तो कई चीज़ें देखने को मिलती हैं सोसाइटी के अंदर कि उसका ऑपरेट हुआ तो बॉडी का दूसरा पार्ट भी डॉक्टरों ने या टीम ने निकाल दिया, वो बाद में पता लगता है कुछ साल बाद जाके जब बॉडी का दोबारा से वो होता है। इस चीज़ को कैसे देखते हो आप? आपने इससे पहले भी 2 सवाल किए थे, आई थिंक वो भी इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना कि जब आप ये बात करते हैं कि कोई ऑर्गन डोनेट करने आ रहा है और उसके मन में हमेशा ये डर होता है कि मैं ये देने के बाद कहीं मुझ में कोई कमी ना आ जाए। सो जब भी मैं किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, तो जब हम किसी को किडनी ट्रांसप्लांट डोनेशन के लिए एवेल्यूएट करते हैं, ये मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि किडनी देने के बाद उस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में किडनी देने की वजह से कभी कोई दिक्कत ना आए। तो इसीलिए हम डिटेल में उनकी टेस्टिंग करते हैं, और अगर हमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो हम उस डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसको हमने फिट घोषित किया है तो उसको अपनी लाइफ में किडनी देने की वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा सवाल है कि सक्सेस रेट, कि अच्छा हमने किडनी ट्रांसप्लांट किया और ऐसा भी हो सकता है कि किडनी अच्छे से काम ना करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया में जो किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है वो 80 से 92-93% है, जबकि अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो वो एवरेज 95 to 98% है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है लिविंग डोनेशन होती है। लिविंग डोनेशन में क्या होता है, हम अच्छे से मैचिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें देख करके करते हैं। जब हम डिजीज डोनर में बात करते हैं तो हमें जब डेड बॉडी के बाद की वो किडनी है उसको अगले 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करना है। तो उसमें क्या होता है, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है, जो डोनर होते हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं होते या कोई और समस्या आती है, तो उसके कारण रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो डिटेल में देखने के बावजूद कई बार ऐसा होता है 2 से 5% ऐसा हो सकता है जिनकी किडनी अच्छे से काम ना करे, बट ये एक एक्सेप्टेबल रिस्क है जो किसी सर्जरी में भी हो सकता है, 2 से 3% का रिस्क, तो वो रिस्क होता है। लेकिन हमारे लिए डोनर पहले होता है कि डोनर को कभी भी किडनी देने की वजह से अपनी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ये हम डिटेल में टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें भी कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो हम वो डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। जो आपका तीसरा सवाल है कि सर्जरी हुई और उसके बाद सर्जरी तो हुई जी कि सिर्फ किडनी निकालनी है, साथ में लिवर भी निकाल दिया, तो दीज आर इलीगल थिंग्स। ये इलीगल थिंग्स कभी भी मुझे ऐसा लगता है किसी लीगल सेटअप में नहीं हो सकती, ये वहीं होंगी जहाँ पर इलीगल काम होते हैं। तो एज वी आर वर्किंग इन ए लीगल एनवायरनमेंट, हमें इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बात आप करते थे कि कई बार ऐसा होता है कि अच्छा जी ऑर्गन निकाले और बेच दिए, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम सब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट से बंधे हुए हैं। हमारे हॉस्पिटल में कभी भी कोई अगर फैमिली ऑर्गन डोनेट करना चाहती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले सॉटो यानी कि स्टेट ऑर्गन टिश्यू एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। बाकायदा जो भी हॉस्पिटल उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस नेटवर्क में सॉटो में जुड़े हैं, उन सबको ये बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर्टिस हॉस्पिटल से हूँ कि फोर्टिस हॉस्पिटल में 60 ईयर ओल्ड एक मेल है जिसकी डेथ, ब्रेन डेथ इस वजह से हुई है, उसको पुरानी ये बीमारियाँ हैं और उसका एक लिवर और 2 किडनी और हार्ट दान करने के लिए फैमिली आगे आई है। जब ये सर्कुलेट होता है उसके बाद हमारी एक जो नोटो है वो एक वेट लिस्ट तैयार होती है, उसमें हर एक व्यक्ति का नंबर होता है 1 2 3 4 5। तो शुरुआत के जो 4 या 5 पेशेंट होते हैं उनको इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए क्योंकि अगले कुछ घंटों में उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केस में हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप 3 से 6 महीने में टेस्टिंग कराते रहिए, लेकिन किसी ने अगर पुरानी की होगी तो हमें फिर से देखना होगा कि क्या वो व्यक्ति ट्रांसप्लांट कराने के लिए फिट है या नहीं। फिर हम उन 4 या 5 पेशेंट्स को असेस करते हैं, उनसे जो वो किडनी या लिवर जो भी ऑर्गन है उसकी मैचिंग करते हैं और जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है, इसमें कहीं कोई घपला होने का चांस नहीं। जहाँ चांस होता है वो सब इलीगली हो रहा होता है, वहाँ डोनर भी इलीगल है, सर्जन भी इलीगल है, हॉस्पिटल भी इलीगल है, सब कुछ इलीगल होता है।
तो वो एक अलग ही सेटअप है। और इलीगल चीज़ें दुनिया के किसी भी कोने में हो सकती है, आप उसको नहीं रोक सकते, जिसने करना है उसने करना है वो। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब हम एक लॉ से बंधे हैं, लीगल ढंग से जो काम कर रहे हैं, तो हमें प्रोसेस सारे फॉलो करना है। मिनिमम प्राइस है, क्योंकि उसको ब्लड निकालने को और प्रोसेस करने के लिए कुछ मशीनें होती हैं, बैग्स होते हैं जिसमें होता है। फिर जो टेस्टिंग होती है उसमें हम इन्फेक्शन रिलेटेड जो हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के टेस्टिंग होते हैं, जो हाईएस्ट टेस्टिंग से करते हैं, जिसमें मिनिमम चांस होता है कि वही बात हुई है कि पेशेंट को भी रिस्क नहीं होना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से। वो जो टेस्टिंग का कॉस्ट होता है और बैग्स का और मशीनरी का कॉस्ट होता है, वो पेशेंट से चार्ज किया जाता है, क्योंकि उनको डोनेशन, ब्लड डोनेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है, इट्स ओनली फॉर टेस्टिंग, ताकि सेफ ब्लड दिया जाए। और वो भी आई थिंक मिनिमम है, क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग रेकमेंड कर दिया अब गवर्नमेंट ने, तो वो पहले से थोड़े प्राइसेस बढ़े हैं, बट अदरवाइज इट इज़ जस्ट फॉर कीपिंग द ब्लड सेफ टू द पेशेंट। ना कि उनसे एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ना ही डोनर को कुछ दिया जाता है या उनसे लिया जाता है, तो इट इज़ वेरी वॉलंटरी डोनेशन। नहीं सर, वो नहीं सर, वो ब्लड ਦੀ ਨੈਕੋ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1500 ਤੋਂ 2000, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਰਕਡ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਚਾਰਜ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆਫ ਲੂਜ਼ਿੰਗ देयर ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਲਸੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, it is very difficult to get it back. So anyone जो सर ने गल की थी कि लीगल फ्रेमवर्क जो काम कर रहे हैं, they are not doing anything illegal. Thank you.